Good morning, dear students. Today we discussed BSc Part 3rd, Thermodynamics and Statistical Physics, Unit 1st. Today we discussed thermodynamic process. Process in which state of thermodynamic variables like P, V, T changes are called thermodynamics process. जिस है स्टेट या वह उपक्रम या प्रक्रम जिसमें हम थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स जैसे लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर यह चेंज हो रहे हैं तो हम उसमें क्या बोलते हैं कि उस निकाय के अंदर क्या चेंजेस हो रहा है या उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम या ऊष्मागतिकीय उपक्रम. देन गिवन फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स and closed system n is equal to constant under ideal condition is assumed, then PV is equal to nRT is applicable. कुछ भी उसी अंदर हम मोल और क्लोज सिस्टम की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो n कांस्टेंट रहता है. अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है इसमें ये कंडीशन क्या है, आइडियल कंडीशन से, देन PV इज इक्वल टू nRT जहाँ R और n कांस्टेंट है, PVT प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर. देन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. फर्स्ट हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जिसको हमने आइसोक्रोमिक प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर हमने प्रेशर कांस्टेंट है. इज गैस इज कन्फाइंड इन ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हैविंग फिक्स्ड पिस्टन, अर्थात V इज इक्वल टू कांस्टेंट, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है तब आइसोक्रोमिक प्रोसेस या सम आयतनिक प्रक्रम. V कांस्टेंट, देन PV, यहाँ हम आइडियल गैस की बात करें, देन PV इज इक्वल टू nRT. इट मीन्स P बाई T इज इक्वल टू nR अपॉन V इज कांस्टेंट. देन प्रोसेस इक्वेशन P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट बिटवीन टू स्टेट P1 V T1 एंड P2 V T2. देन one can use P1 by T1 is equal to P2 by T2. Then T1 by T2 must be in Kelvin. For example, a given mass of an ideal gas is confined in a vessel of fixed volume at temperature 27 degree centigrade. Pressure of the gas is found to be 2.4 atmospheric unit. Find its pressure if the gas is heated to 52 degree centigrade. Then given values are P1 2.4 atmospheric unit, T1 is equal to 273 plus 27 300 Kelvin, P2 find out, and T2 is equal to 325 Kelvin. Then a condition in the constant volume, then P1 upon T1 is equal to P2 upon T2, then P2 is equal to T2 upon T1 into P1, then 325 upon 300 into 2.4 is equal to 2.6 atmospheric unit. नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापीय प्रक्रम. कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापीय प्रक्रम. देन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन PV nRT इज इक्वल टू कांस्टेंट. देन प्रोसेस इक्वेशन PV इज इक्वल टू C बिटवीन टू स्टेट्स P1 V1 T and P2 V2 T. Then P1 V1 is equal to P2 V2. Then हम लास्ट फाइंड आउट किया था P1 upon P2 is equal to T1 upon T2. Then here is P1 upon P2 is equal to V2 upon V1 या P1 V1 is equal to P2 V. Then isothermal, then continuously V is continuously decreasing, then pressure is decreasing continuously. In this process opposite direction V is increasing, then P is decreasing. Here is the PV indicator diagram. PV is equal to constant या yx is equal to constant, xy is equal to C equation of RH. Greater than the temperature, greater is C is equal to nRT, hence RH become less sharp and further from the axis horizon. Here then is equal to T2 and T1. Then here graph is sharp in this, then T2 is greater than T1. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ग्राफ जो है इसका शार्पनेस है वो कम जो है वो ज़्यादा होती है. देन स्लोप ऑफ आइसोथर्म एम टी इज इक्वल टू टी. देन स्लोप dV बाई dx, इट मीन्स dP बाई d1. देन PV इज इक्वल टू C, देन P dV प्लस V dP इज इक्वल टू 0. देन V dP इज इक्वल टू माइनस P dV. देन स्लोप dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस PV. देन M स्लोप ऑफ द या हम इसकी प्रवणता कह दें T इज इक्वल टू C या कांस्टेंट टेम्परेचर पर माइनस P dV ऑलवेज नेगेटिव.
Then nature of change in P and V must be opposite. P is increasing, V is decreasing. P is decreasing, then V is increasing. For example, one mole of helium gas expands to 2 times its initial volume of constant temperature 27 degrees. Then find work done by the gas in joule. Here T is equal to 273 into 20, then T is equal to 300 Kelvin constant. Vf is equal to 2 Vi. Then W is equal to nRT log Vf upon Vi. Then 1 into 25 upon 3, 300 into ln 2. RH value is equal to 8.34 and 25 upon 3. Then वैल्यू जो है टोटल कितने 1732 जूल. थर्ड प्रोसेस है वो एडियोबाइटिक प्रोसेस. एडियोबाइटिक प्रोसेस मीन्स इन दिस प्रोसेस हीट एक्सचेंज इज जीरो, यानी कि इस एडियोबाइटिक या रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, या एनर्जी जो है उसकी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन शून्य हो. गैस इज कन्फाइंड इन ए पिस्टन सिलेंडर अरेंज्ड हैविंग इंसुलेटिंग या एडियोबाइटिक वाल्स, यानी गैस को हमने इसके बाउंड्री को ऐसे वाल कर दिया कि उसका जो है ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता. इन दिस प्रोसेस हीट एक्सचेंज इज जीरो, Q इज इक्वल टू जीरो. फर्स्ट हमने आइसोक्रोमिक जिसमें आयतन कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट. थर्ड प्रोसेस की बात करें एडियोबाइटिक प्रोसेस, जिसके अंदर क्या है जो एनर्जी है वो एक्सचेंज नहीं है या हीट एक्सचेंज जीरो. Q इज इक्वल टू जीरो. देन PVT ऑल चेंजेस इन दिस प्रोसेस इन डिफरेंशियल फ्रॉम du प्लस dw इज इक्वल टू जीरो, अर्थात du जीरो है, उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं है, इट मीन्स dw जीरो. देन NCV/dt प्लस PdV इज इक्वल टू जीरो. देन n r अपॉन गामा माइनस 1 dt प्लस nRTV इज इक्वल dV is equal to 0. Then process equation PV gamma is equal to C using PV and RT, and other forms are PV gamma minus 1 is equal to C, P की power 1 minus gamma, T की power gamma is equal to C constant. तो यहाँ हम इक्वेशन इस एडियोबाइटिक प्रोसेस के अंदर देख रहे हैं. ये जो है हमारे पास जो इसकी प्रोसेस की फॉर्म आई वो कितनी है, 3 फॉर्म्स आई, तीनों में कांस्टेंट है. पी वी की पावर गामा, टी वी की पावर गामा माइनस 1. थर्ड इक्वेशन है पी की पावर 1 माइनस गामा, टी गामा इज इक्वल टू सी. तो यहाँ पर तीनों इक्वेशंस अलग अलग हैं, यानी टोटल अगर हम देखा जाए तो एडियोबाइटिक सिस्टम के अंदर